Hello students, we were discussing about in earlier classes about the chapter number 3 gravitation of physics. Okay. And we have finished the topic about the Newton's law of gravitation. As you know that the gravitation is nothing but it is the force of attraction between any two objects in the whole universe. Therefore this law is also known as universal law of gravitation, and we have derived a formula related to this force of attraction, that is force of gravitation. You know that. Okay. uh, and what is that formula? That formula is, very well, F is equal to, very well, F is equal to capital G, and here we take m1 and m2 divided by some other quantity, that is d square or r square. We have taken here d square. Okay, where G is universal gravitational constant, universal gravitational constant. Actually, what is m1 and m2? M1 m2 is nothing but there are two objects, two bodies we have taken here. We have taken here two bodies, and first body having mass m1, second having m2. This is the symbol we have taken in earlier classes. Okay. And what is d? D is nothing but the distance between the centers of the two bodies. This is d. And according to Newton's law of gravitation, we have calculated in earlier classes that F is equal to capital G. Capital G means universal gravitational constant. It is proportionality constant actually according to Newton's law of gravitation, but it is called Newton's universal law of gravitation. Okay. Therefore, we have actually completed up to this formula, and in today's class we will discuss about the Kepler's laws of planetary motion. Today I want to discuss with you Kepler's laws of planetary motion. This is our topic which we have to discuss in this class, in this video. Okay. And in our last class we have learnt about the first law of planetary motion, that is Kepler's first law. In first law Kepler has said that every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. That is, suppose that this is the orbit of a planet. Suppose that this is the orbit of a planet, and planet is revolving around the sun. Planet is revolving around the sun. This is planet. We have taken a single planet, a particular planet, but it is not a special, but कोई भी हो सकता है. Okay, it may be any planet, and we know that Kepler has given that every planet
every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. elliptical orbit means ये जो हम पाथ देख रहे हैं इसके जो है रिवॉल्व करने से इस टाइप का पाथ बनेगा, इस टाइप के जो है वो शेप बनेगी, इसको हम एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आप आगे क्लास में जो है 11th क्लास में आप मैथमेटिक्स लें तो उसमें एक जो है चैप्टर है उसमें एलिप्स आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ। ओके, फिलहाल यहाँ पर ये समझें कि जो एग टाइप की शेप होती है, एग टाइप की, ये आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को एलिप्स बोलते हैं। और जितने भी केपलर्स ने ये कहा है इसमें कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका मोशन अराउंड द सन या रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जब मूव करेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, ये इसका पाथ है। और क्या बताया इसने कि इसके एक्चुअल में क्या होता है, इसके दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर कहीं होगा। तो F1 और F2 नाम इसको दे देते हैं, F1 F2। क्लियर? इसको प्लूरल में FOCI लिखते हैं। फोकाई भी कुछ लोग पढ़ते हैं, फोसी भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना चाहें। तो F1 F2 क्या है, ये फोकाई हैं। F1 F2 फोकाई या फोकस कुछ भी बोलते हैं इसको, तो ये इसके क्या है, फोकस हैं। देयर आर टू फोकस इन द एलिप्स। ये इस एलिप्स की प्रॉपर्टी कि इस एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। जैसे हमारे सर्किल के अंदर एक सेंटर होता है, सेम इस एलिप्स के, यानी ये भी एक टाइप की फिगर है, इस एलिप्स के अंदर दो फोकस होंगे जिनको हम नाम F1 F2 दे सकते हैं। ओके, O भी दे सकते हैं, O डैश भी दे सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू नेम द फोकस। ओके, आप एनी पॉइंट ले सकते हैं, बस वहाँ पर हमें ये जानना कि ये दोनों फोकस होते हैं। और यहाँ पर इस टाइप से दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल मिड से, इधर से और इधर से। क्लियर? तो इसको हम नाम देते हैं AB, कुछ नाम दे देते हैं AB एंड CD। These points are given as AB and CD. Okay, in Kepler's first law, you can say in the book, okay, first law states that the orbit of a planet is an ellipse with the sun situated at any one of the foci. कह रहे हैं कि जो एक प्लेनेट का ऑर्बिट है वो एक एलिप्स होता है और सन किसी एक फोकस पर, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर सिचुएटेड होगा। मैं यहाँ पर सपोज कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सन विल हेयर इन ऑल द कंडीशंस। नो, सन मे बी हेयर, ओके, इट मे बी हेयर फॉर अदर प्लैनेट, बट फॉर वन प्लैनेट इट मे बी, सपोज इट इज़ हेयर, इट इज़, what is that? It is sun. Okay, sun is situated only the focus either here or here, and और कहीं पर नहीं होगा, इसके अलावा, फोकस के अलावा कहीं पर नहीं होगा। ये केपलर्स ने जो है स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ के अंदर इन्होंने कहा है कि जो हमारा प्लेनेट अराउंड द एलिप्स रिवॉल्व करता है, उस एलिप्स के जो फोकस बनेंगे उस फोकस पर किसी एक फोकस पर हमारा सन होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ। एंड व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ प्लेनेट टू द सेंटर ऑफ द सन। जो लाइन है ये हमारा सन है और ये हमारा प्लेनेट इधर रिवॉल्व कर रहा है कहीं, ठीक है, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अर्लियर क्लासेस में आपने शायद पढ़ा होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका मोशन, उसका जो रिवॉल्यूशन है वो अराउंड द सन एंटी क्लॉकवाइज, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इट इज़ नॉट जो है नेसेसरी दैट वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट नो। ओके, वी वांट टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। What is second law of Kepler? The line joining the center of the sun and to the center of the planet. ये जो लाइन है एक इसके सेंटर से सन के
ओके, यहाँ से जो लाइन हम इसको ज्वाइन करेंगे और दूसरा एक पॉइंट लेंगे। पूरा स्टेटमेंट ये है, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज ये अभी प्लेनेट टुडे, आज के दिन यहाँ पर है, लेकिन कुछ दिन बाद, मैं 30 डेज के बाद सपोज करता हूँ ये यहाँ प्लेनेट पहुँच गया, ये प्लेनेट यहाँ पहुँच गया। कितना टाइम लगा यहाँ पर? 30 डेज। सपोज इट इज assumption, okay, it is suppose that is point p1 and point, this is p2, and time taken is 30 days. This is our time interval. Okay, we assume that time interval is 30 days. Suppose here p1 today, planet is here, आज यहाँ पर है प्लेनेट, और 30 डेज के बाद ये P2 पॉइंट पर पहुँचेगा। तो इसके सेंटर से जो लाइन ज्वाइनिंग होगी दोनों पर, तो इससे जो एरिया बन रहा है, ये इसने जो एरिया स्वीप किया है इस 30 डेज के रिवॉल्यूशन में, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 30 डेज, दिस एरिया ऑफ, सपोज दिस एरिया इज एरिया F1, दैट इज फोकस 1 से स्टार्ट हुआ, ये F1, P1 एंड P2 इक्वल होगा विच एरिया मीन्स, सपोज प्लेनेट इज हेयर, ओके, सपोज करें अनदर पॉइंट सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर P3 कोई पॉइंट सपोज कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद हम इसको देख रहे हैं। अब अगेन यहाँ से हम कुछ दिन के बाद देखना शुरू करते हैं, फिर वही 30 डेज हम क्या करते हैं, 30 डेज के बाद देखते हैं प्लैनेट कहाँ पहुँचा। तो हमने देखा यहाँ पहुँच गया, तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, मतलब एक बार तो यहाँ लिया 30 डेज में, उसके बाद हम यहाँ पर गैप कर रहे हैं थोड़ा सा, क्लियर। हम यहाँ पर उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि इस जब ये पास आ जाए, ये तो अभी दूर था सन से, प्लैनेट जब यहाँ पर क्लोज हो जाए थोड़ा सा सन के क्लोज, ये प्लैनेट रिवॉल्व करता हुआ और प्लैनेट जो है सन के करीब हो जाए, क्लोज्ड हो जाए, तो हम दोबारा एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे P3। यहाँ से हम इसको देखेंगे इन 30 डेज में, जैसा हम यहाँ पहले ले चुके हैं, टाइम इंटरवल विल बी सेम। ओके, यू कैन सी इन द बुक व्हाट इज सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ वी हैव टू टेक द टाइम इंटरवल सेम। तो हम देखेंगे यहाँ पर 30 डेज का टाइम इंटरवल ले रहे हैं, और सपोज करें यहाँ पर ये P4 पॉइंट पर हमारा प्लैनेट पहुँच चुका है, P4 पॉइंट पर, और ये कितना टाइम इंटरवल हुआ है, ये भी 30 डेज का है, 30 डेज। तो ये जो एरिया कवर किया इसने, ठीक है, ये भी 30 डेज का एरिया, ये भी 30 डेज का एरिया। तो केपलर्स ने ये कहा, केपलर ने, कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, अगर आपने टाइम इंटरवल सेम लिया है, इंटरवल सेम लिया है हमने, यहाँ पर इंटरवल कितना लिया है, सेम 30 डेज। 30 डेज के इंटरवल में हम ये देखेंगे कि दोनों का एरिया ऑफ F1 इज दैट, दिस पॉइंट इज F1, एंड P1 P2 इक्वल एरिया ऑफ F1 P2 P3 P4, ये दोनों एरिया इक्वल होगा। व्हाट इज द कंडीशन विच इज कंपल्सरी इन दिस सेकंड लॉ? सेकंड लॉ में ये कंपल्सरी कंडीशन है कि हमें टाइम इंटरवल सेम लेना है। ओके, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू टेक 30 days. No, you can take 31 days, you can take just 1 second, 1 minute, you can take everything, but you have to take the time interval same, and you have to take time interval as same. Okay, आपको टाइम इंटरवल सेम लेना है। देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट, यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे। जब ये एरिया इक्वल हो रहा है, इसकी मीनिंग ये हुई कि दिस मीन्स दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
aerial velocity. What is the formula of aerial velocity? Aerial velocity is nothing but area traced divided by time. Clear? दिस इज द फॉर्मूला. टाइम हमने सेम ले लिया 30 डेज और एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है. 30 डेज अगर ये ले लिया तो एरिया ट्रेस जो हुआ है, ये क्या कह रहे हैं, जो हम केपलर ने कहा है कि ये एरिया ट्रेस का मतलब ये जो एरिया हमें मिला ये और ये भाई, अगर ये इक्वल है और ये 30 डेज डिवाइडेड बाई, अगर मैं मान लूँ इसको 100 और इसको भी 100 मान लूँ, ओके, ये दो केपलर सेकंड लॉ से हमें मिला कि दोनों का एरिया इक्वल होगा अगर हमने टाइम इंटरवल सेम लिया है. अगर हमने टाइम इंटरवल सेम लिया तो यहाँ पर 100 जब रखेंगे इस केस में, इस वाले केस में, तो इसका भी 30 डेज 100/30 एरियल वेलोसिटी हो जाएगी इतनी. और इस सेकंड केस में भी वही होगा कि 100 जो एरिया होगा 100 ही होगा और डिवाइडेड बाई 30 होगा. दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए आंसर सेम आने का मतलब क्या हो जाएगी, एरियल वेलोसिटी अगर किसी की जितनी भी आ रही 3.33 जो भी आ रही है, तो ये 3.33 दोनों केसेस में आएगी. इसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं. यानी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाए उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट. ओके, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर. एंड थर्ड लॉ, व्हाट इज थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड. एक और नई चीज़ इसमें आ गई है, वो है कि अगर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड मीन्स होता है किसी एक प्लैनेट को रिवॉल्व करने में, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है, ठीक है, इट इज़ द टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन वन रिवॉल्यूशन. मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है वो एक प्लैनेट का, यानी जो प्लैनेट रिवॉल्व किया है उस प्लैनेट का टाइम पीरियड होता है, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं हम. तो थर्ड में ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, किसका, टाइम पीरियड का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होगा, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, इसके क्यूब के, ये क्यूब लगा दिया हमने यहाँ पर. क्या है ये सेमी मेजर एक्सिस, क्या आ गई, क्या चीज़ है ये. टाइम पीरियड तो हमने बता दिया कि एक प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है, ये हमारा है कोई एक फिगर. अब यहाँ पर एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है इस टाइप से. ये जो लाइन मैंने बनाई थी अभी पिछले फिगर में, वही लाइन हम दोबारा से बना रहे हैं, ABCD. क्लियर? ओके, तो ये हमारा यहाँ पर फोकस था F1 और इस पॉइंट पर कहीं पर F2 था. क्लियर? तो ये जो हम स्टेटमेंट देख रहे हैं थर्ड, ये आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं वहाँ पर. ओके, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड मीन्स अगर ये प्लैनेट यहाँ से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया है तो रिवॉल्व करेगा इधर से, रिवॉल्व करते 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 यहाँ से बैक, और ये जस्ट आफ्टर रिवॉल्विंग ये फिर रीच इसी पॉइंट पर करे, यानी यहाँ से रिवॉल्व किया ऐसे और फिर यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पर आने में यानी एक रिवॉल्यूशन यही हुआ. तो हम ये देखना चाह रहे कितना, जैसे हमारी अर्थ है 365 होल 1/4 डेज में ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है. तो यही अर्थ का टाइम पीरियड है, उसको हम T से डिनोट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर अर्थ से मेन पर्टिकुलर अर्थ को नहीं लेना है, ये हर एक प्लेनेट का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है जो टाइम पीरियड है किसी भी प्लेनेट के, उसका स्क्वायर और इसकी सेमी मेजर एक्सिस, इससे जो ये बना हुआ है ना ये एलिप्स, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब अगर ये हम इसको O पॉइंट माने,
ए से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। सेमी मीन्स हाफ। दिस इज ए बी इज मेजर एक्सिस और सी डी इज माइनर एक्सिस। ए बी को क्या कहेंगे? ए बी को मेजर एक्सिस बोलते हैं इसमें, मेजर, और सी डी को माइनर एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मीन्स हाफ, मेजर एक्सिस मीन्स ए बी बाई टू। ए बी बाई टू मीन्स फ्रॉम ए टू ए, the distance from A to O. This distance we have taken, or the distance from O to B. You can take any one of them. Clear? तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होगा? टाइम पीरियड का स्क्वायर हम टी मान लेते हैं टाइम पीरियड को। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस को हम आर मान लेते हैं। आर मीन्स क्या? व्हाट इज आर? ए बी डिवाइडेड बाई टू। दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। ये जो है केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है। ओके, अब जब भी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्लियर? अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करना चाहते हैं तो क्या होगा? आर क्यूब इक्वल यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या आएगा? कांस्टेंट टी स्क्वायर भी आएगा और इंटू कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये सभी जानते हैं आप लोग कि कांस्टेंट लाना पड़ता है। और ये कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, अब ये टी स्क्वायर इधर अगर आएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड में ले लें, ट्रांसपोज कर लें, तो इक्वल के उधर राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? कांस्टेंट। वी हैव अ कांस्टेंट दैट, ये हमारा हो गया एक थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। आर क्यूब मीन्स, आर मीन्स सेमी मेजर एक्सिस, आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। व्हाट इज टी स्क्वायर? टी मीन्स टाइम पीरियड टू रिवॉल्व अराउंड द time period of a planet. Okay, what is time period? Time period is nothing but it is the time of a planet to revolve one complete revolution around the sun. It's clear? Okay, this is third law of Kepler का third law ये है। According to third law of Kepler, it is given that the time period is square of time period is directly proportional to semi major axis cube of semi major axis. Okay, क्या मीनिंग है इसकी? This law means that when the size of elliptical orbit of a planet is large, time period of revolution of the planet is more and vice versa. क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर ये मैं अलग अलग 2-3 फिगर आपको बना करके दिखा दूं, यहाँ पर सन कहीं है, सन ये है, इसमें से कहीं भी हो सकता है। दिस इज सन, और ये ऑर्बिट है किसी प्लैनेट की, ये भी ऑर्बिट है किसी प्लैनेट की, ये भी ऑर्बिट है किसी प्लैनेट की, डिफरेंट प्लैनेट्स की ऑर्बिट है। तो ये इस लॉ से हमें ये पता चला, इस लॉ से हमें ये पता चला कि जिस भी प्लैनेट की ऑर्बिट लार्ज होगी। अब देखें, ये मैं इसको प्लैनेट P1 मान लेता हूँ, इसको P2 सपोज करता हूँ और इसको P3। ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। दिस इज आवर सन। क्लियर? ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो बड़ी ऑर्बिट है वो प्लैनेट 3 की है, P3। तो क्या है, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं केपलर ने ये कहा कि अगर ऑर्बिट लार्ज होगी तो इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा? मोर होगा। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड और ऑर्बिट अगर लार्ज है तो दोनों क्या होंगे? लार्ज ऑर्बिट के लिए टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। क्लियर? और ये देखिए P1, इसका क्या होगा? टाइम पीरियड फॉर टाइम पीरियड P1 का क्या होगा? स्मॉल होगा एज कंपेयर टू P3। P3 का क्या होगा? मोर होगा, या
ग्रेटर होगा। इसका लेस कह सकते हैं, लेस। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, टाइम पीरियड। ये केपलर ने कहा है। ठीक है, केपलर के अकॉर्डिंग ये थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि जिस प्लेनेट की ऑर्बिट छोटी होगी, स्मॉल होगी, उसका टाइम पीरियड भी कम होगा, और जिसकी ऑर्बिट लार्ज होगी उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा? टाइम पीरियड मोर होगा। क्लियर? ये इससे हमें क्या मिला? इससे हमें एक स्टेटमेंट मिल गया, हमें ये पता चल गया कि अब आप देख लें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क टू enlist all the ऑल द प्लैनेट्स टाइम पीरियड। ओके, सभी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो आप लिख लें, और उसमें जो सबसे कम टाइम पीरियड जिस प्लैनेट का है आप देखेंगे वो सन के सबसे ज़्यादा क्लोज्ड होगा। क्लोज होने का क्या मतलब? उसकी ऑर्बिट बहुत छोटी बन रही होगी। उसकी ऑर्बिट जब छोटी बनेगी तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, और जो सबसे दूर होगा प्लैनेट, सबसे दूर सन से, उसकी ऑर्बिट बहुत बड़ी बनेगी। ये दो मैं एक आपको रफ फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए कि ये जो दूर वाला प्लेनेट है सन से दूर, सन से दूर ही होता रहेगा, जितना दूर होगा उसकी ऑर्बिट उतनी बड़ी बनेगी। ओके, तो ऑर्बिट अगर बड़ी होगी तो उसका टाइम पीरियड, जो भी प्लैनेट है, आप देख लें आपके सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उसके जो है उसके हम टाइम पीरियड लिख लीजिए। आप मोबाइल से देख लीजिए, या कहीं आपको डेटा मिले किसी बुक में होगा, पहले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो दूर है इसका मतलब उसका ऑर्बिट बड़ा बनेगा और उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये आपका जो है एक होमवर्क, तो ये है आपके पास होमवर्क, ये आपके पास है। क्या करना है? कलेक्ट एंड लिस्ट द टाइम पीरियड्स of all the planets in the solar system। ओके, सोलर सिस्टम में जो जो प्लैनेट्स आपको पढ़ाए गए हैं उन प्लैनेट्स का टाइम पीरियड, आप जो है टाइम पीरियड की लिस्ट तैयार कीजिए, कलेक्ट कर लीजिए डेटा कहीं से, जहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो, मोबाइल से हो, बुक से हो, कहीं से भी हो वो कलेक्ट करके आप इसको लिख लीजिए, और आप समझ जाएंगे इसमें जो मैं अभी जो है एक्सप्लेन किया हूँ कि जिसकी ऑर्बिट बड़ी है, बड़ी का मतलब वो सन से दूर है, जब सन से दूर होगा तो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। मोर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, its time period will be more, okay, and less distance from the sun, its time period will be less. It is the main explanation of our Kepler's third law. Clear? But here is an important point which we have to note. What is important point? The point is that Kepler has given only the laws. Clear? But did not give a theory to explain the motion, cause of motion। ठीक है, मतलब केपलस ने लॉस तो दिए हैं लेकिन इसके मोशन के बारे में, कॉज का क्यों मोशन में है ये, इसके बारे में कोई थ्योरी नहीं दी। तो इसके बारे में जो थ्योरी देने वाले हैं वो दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे। वो कौन है? इससे आपको नाम याद हो गया होगा, उनका नाम है न्यूटन। न्यूटन्स ने ये इसके बारे में कॉज दिया आपको कि इसके मोशन का मेन कॉज क्या है, यानी जो प्लेनेट मोशन में हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है टाइम पीरियड इनके पास है। तो ये क्या वजह ऐसी बनी? इन्होंने तो दे दिया केपलर ने कि अलग अलग टाइम पीरियड होगा। जो दूर होंगे यानी जिनकी ऑर्बिट बड़ी है, उनकी ऑर्बिट अगर बड़ी है तो वो उनका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो इसके बारे में मेन जो रीज़न है, मेन कॉज क्या है, वो न्यूटन ने आपको दिया है। न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है? न्यूटन के अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी प्लैनेट्स मोशन में हैं वो क्यों मोशन में हैं?
क्योंकि आप सेकंड चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि विदाउट एनी फोर्स देर इज नो डिफरेंट इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर वो मोशन में है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो मोशन में रहेगा ऑलवेज। अगर वो रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि एक प्लेनेट का और दूसरे प्लेनेट का, तीसरे प्लेनेट का अलग अलग मोशन है और वो अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या है, मूव कर रहे हैं। तो इसमें यही इन्होंने मेन कॉज क्या लिखा है, मेन कॉज है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ठीक है, सन हर एक प्लेनेट पर एक फोर्स लगा रहा है और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन it is directly proportional to the masses of the product of masses और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसीलिए डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, तो इसलिए क्या होगा, उसका जो मोशन होगा वो धीरे होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल। ओके, तो आपका जो होमवर्क है वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपकी बुक में है इंटेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको करना है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दूसरा होमवर्क ये है कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ये आपको करना है। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ये आपकी बुक में है, ये देख लीजिएगा, वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन भी हो सकते हैं और कुछ डेफिनेशन है। ओके, थैंक यू।